کا دن یعنی کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کا دن. بیسن جو ہے بنیادی طور پر چنے کا اس کا کیا کریں؟ چنا ہمارے جسم میں بہترین ایبزاربنٹ ہے. ہیلتھ ڈرنک کے لیے کیا کیا؟ کیلے لیے، آلو بخارے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں 1 گلاس دودھ ڈال دیا. صحیح. دہی میں بنانا چاہیں دہی میں بنا سکتے ہیں، دودھ میں ڈالنا چاہیں دودھ ڈال سکتے ہیں. پیٹ کے امراض ان کے لیے بہترین ڈرنک ہے، کیونکہ آغا صاحب بھی بتائیں گے کہ آلو بخارا کتنی اچھی چیز ہے کانسٹیپیشن کے لیے. بڑی زبردستی کریم بنا رہے گولی دینے والے ہیں. گولیاں بہترین، یہ جنت کی گولیاں ہیں، یہ جنت کے میوے ہیں. دیکھیں پورا گلاب، اور آپ کی آئرن کی کمی ہوتی ہے، بالکل گلاب کا ایکسٹریکٹ. ٹھیک ہے، مرون کلر کی. اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی بلائی. یہ دیکھیے یہ آ گئی بلائی. واہ. یہ بیسن. ٹھیک ہے، یہ بیسن ڈالیں گے تقریباً 2 سے 3 چمچے. یہ دیکھیں پوری کریم زبردست مکس تیار ہے. اس کا ٹیکسچر دیکھیں، یہ بالکل ایک نا جیسے یہ کریم کی طرح. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر یہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس علاقے کو، اس جگہ کو دیکھا تھا. آپ ان خاتون سے بھی ملے تھے جن سے ملنے ہم اس محلے میں آئے تھے. تب اس ٹیم کا حصہ میں نہیں تھی، لیکن سما ہی تھا. سما کا کام ہے بے سہاروں کو سہارا دینا، گرتے ہوئے کو تھام لینا، اور پھر کسی کی عزت نفس پہ آنچ بھی نہ آئے. ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ہم ایسے ہی لوگوں کے خواب بھی پورے کرتے آئے اور ایسے ہی لوگوں کا سہارا بنتے آئے. ایسی ہی خاتون تھی جن سے آپ کو ملوایا تھا کچھ عرصے پہلے ساحر میں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایپیسوڈ میں نے بھی دیکھی تھی، اور وہ تھی ڈاکٹر. ڈاکٹر بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت خون مانگتا ہے یہ آپ کا پیشہ جو ہے. رات دن کی پڑھائی، آپ کا پیسہ پانی کی طرح جا رہا ہوتا ہے. ماں باپ کی محنت ہوتی ہے، اس بچے کی محنت ہوتی ہے جو آپ کو میڈیسن پڑھاتی ہے، پھر آپ کو ڈاکٹریٹ دیتی ہے، پھر آپ اس کو پریکٹس کرتے. اور کیا کمال خاتون تھی. کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اگر یاد تھا تو اپنا پروفیشن یاد تھا. آپ انہیں اپنی بیماری بتائیں وہ آپ کو پوری دوا دیتی تھی. لیکن نہیں یاد تھے تو اپنے پیارے نہیں یاد تھے، نہیں یاد تھے تو اپنے دوست احباب نہیں یاد تھے. کچھ یاد نہیں تھا. نام ان کا تھا نیلوفر. کچھ یاد آیا؟ چلیے چل کے آپ کو پہلے نیلوفر سے ملواتے ہیں جو ایپیسوڈ پہلے یہاں ہم نے کی تھی. اس کا پیکیج دیکھتے، اس کے بعد آ کے کچھ باتیں اور نیلوفرس کے بارے میں کریں گے. اور ان باتوں میں میرے ساتھ شامل ہوں گے سارم مردی. جی ہاں، سارم مردی ایک وہ نام جو ہمیں کہتی ہوں نا کہ سما سہارا بنتا ہے. سارم بھائی تو ہیں ہی سہارا بے سہاروں کا. بس ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جہاں جہاں ہماری ہمت ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے. چل کے ایک پیکیج دیکھتے ہیں، پیکیج کے بعد واپس آتے ہیں اور نیلوفر کے بارے میں کچھ اور ان سے بھی جانیں گے اور کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. پیکیج دیکھتے ہیں. میں ہوں پروفیسر مس نسیم بیگم. میں ہوں، لیکن میرا نام ہے ڈاکٹر. سمجھا کرو، سمجھا کرے بھائی. آئی ایم اے فلیٹ اونر سنس دین 30 years. نہیں، جب یہ بلڈنگ بنی تھی جب سے فلیٹ میرے نام ہے. صحیح ہے یا نہیں کہ مختلف کلینکس میں، اور جب سروس ملی اسکول ہیلتھ میں تو وہاں سر نہیں کھپانا پڑا. جیسے آپ کا بچہ کسی اسکول میں ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی امی ابو کو بولوں گا کہ جب بھائی ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی وہ دلا دو، تو وہ امی بولے گی اسکول کی ڈاکٹر نے خود کیوں نہیں دی. یہ ہے پبلک میڈیا باہر کھڑا پر سن رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، دوائی نہیں بٹ رہی ہے نا راجوانی صاحب. اور مختلف جگہوں پہ کرائے کی جگہیں تھیں نا وہ تو. جی آپ پہلے نیلوفر سے، یہ تھی وہ نیلوفر جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی. لیکن یہ کیسا ذہنی توازن تھا جہاں ان کو میڈیسن تو یاد تھی لیکن اپنے یاد نہیں. کیا کہیں کمی ہمارے معاشرے میں تھی کہ ہم اپنوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چل پاتے؟ کیا اکیلا پن تھا کہ یہ فلیٹ نمبر 5 بلاک نمبر C، یہ دروازوں پہ لگا زنگ، یہ جالیاں،
ये कुछ भी उन्हें नहीं कहती थी। यहाँ जमी हुई काई, इन सब में वो खुश थी। ऐसी क्या वजह रही? क्या अकेलापन भी इतना भाने लगा उनको? और आहिस्ता आहिस्ता वो नफ्सियात बनती चली। एक डॉक्टर माशरे को लेके चलता है, लोगों की उम्मीद होता है, बेसहारों का सहारा। आज उसी डॉक्टर से एक दफ़ा फिर मैं आपको मिलूंगी और देखिएगा क्या कमाल कर दिखाया समा ने और सारिम को मिलकर। आइए सारिम भाई से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ और जानते हैं नीलूफर के बारे में। यहाँ मैं नाज़रीन एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, बहुत छोटा सा ये फ्लैट है, बहुत छोटी सी जगह है ये। और जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं। आपको मेरे कैमरामैन्स भी नज़र आ रहे होंगे, कहीं मैं आपको कैमरे के ऊपर बिल्कुल यूं चढ़ती हुई नज़र आ रही, ऐसा कुछ, ये सब कुछ लाइव शो की यही खूबसूरती है। अब मैं अपने कैमरे को क्रॉस करती हुई, सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हम यहाँ मौजूद हैं। प्लीज़ 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 बैठिए सारिम भाई, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये देखिए, ये घर आप लोगों ने नाज़रीन पहले भी देखा हुआ है। इसको हमने थोड़ा साफ सुफ किया, बेहतर किया, थोड़ा सा रहने के काबिल क्या है। सारिम भाई मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं उस शो में उस वक्त थी नहीं, साहिर ने शो किया था और बेहतरीन शो था माशाल्लाह से। तब हमने नीलूफर को जिस हाल में देखा, मुझे वो याद है, एपिसोड मैंने देखी थी। क्या हुआ उसके बाद और वजह आपको क्या लगती है इस नहज तक पहुंचने की? असल में हमारे यहाँ माशरे में बेहिसी बहुत है। हमारे यहाँ एक वक्त था जो हम लोगों ने गुजारा था कि सब दरवाजे खुले होते थे, ये घर वाला उस घर में जा रहा है, वो घर वाला आस पड़ोस की फिक्र रहती थी, फिक्र रहती थी। कहीं कोई परेशान हाल होता था तो महल्ले वाले उसका ख्याल करते थे, कोई भूखा होता था तो महल्ले वाले उसको खाना देते थे। लेकिन आज इतना बेहिसी का दौर आ गया है कि इधर अच्छे खासे अपार्टमेंट्स हैं जिधर हम बैठे हैं, बिल्कुल, और इस जिधर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इधर ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना जिंदगी का और कोई जिंदगी के कोई असरात भी यहाँ मौजूद ही नहीं, कुछ भी नहीं थे। ये औरत कैसे जिंदा रही ये सिर्फ खुदा जानता है, मौजज़ा है, ये मौजज़ा है, ये खुदा के सिवा कोई भी नहीं जानता। जिस हाल में हम यहाँ से ले करके गए, जिस हाल में इनको देखा, बड़ी हैरत हुई। लेकिन कैसे पता चला था सारिम भाई आपको इनके बारे में? मुझे यहीं किसी अपार्टमेंट से किसी एक शख्स ने, अहमद नाम है या क्या नाम है, उसने मुझे इत्तला दी थी कि इस तरीके से एक औरत है और लोग उसका वो फ्लैट भी हथियाने के चक्करों में है। अच्छा, ये उनका अपना फ्लैट? ये उनका अपना फ्लैट है। तो फिर मैं इधर आया था और मैंने उनसे, डॉक्टर साहबा से बात की। पहले तो बड़ी एक अजीब सी उनकी कंडीशन थी, और बल्कि मैं आपको एक बताऊं, जैसे ये बाल ख्वातीन के होते हैं, ऐसे गिरा सी नहीं डाल लेते वो, तो कोई 8-10 साल पहले उन्होंने गिरा डाली होगी, और वो गिरा के सारे बाल ऊपर से ख़त्म हो चुके थे, चंद बालों से वो रुकी हुई थी। यानी इस हाल के अंदर वो औरत पहुंची हुई थी। कुछ याद नहीं था कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इतनी समझदार, इतनी ज़हीन औरत। आज अगर आए तो आप उनसे अगर पूछें उस वक्त कि हम आए थे तो क्या हुआ, कैसे हुआ था, याद है वो कुछ एक एक बात आपको बताएंगी, वो एक एक बात आपको बताएंगी। मैं खुद हैरान हो गया, यहाँ तक मुझे बता रही है। मैंने बोला कि मैं आया था तो मेरी तबीयत खराब, हाँ उस वक्त तुम्हारी आंखें ऐसी हो रही थी। मैंने बोला अब कैसा हूँ? बिल्कुल आप ठीक हैं। यानी दवा देना, बातें करना। वही मैं भी देखी थी कि मेडिसिन सारी उनको याद थी, लेकिन अपनों की कोई शनाख्त नहीं थी। या शायद ये वजह, जैसा आपने जुमला कहा कि हम लोगों में बेहिसी बहुत आ गई जनाब, बहुत बेहिसी। जब हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर कोई किसी को क्या याद अपने वो होते हैं जो आपका साथ देते हैं, अपने वो नहीं होते जो आपको अपना कहते हैं, या कोई बड़ा बना लेता है, या कोई भाई बना लेता है, कोई बाप बना लेता है। ये एक घर में पैदा होने से या एक रिश्ते में रहने से अपने नहीं होते, क्योंकि अमूमन आपने देखा भाई बाप को कत्ल कर देता है, बाप बेटे को कत्ल कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। तो ये लोग अपने नहीं होते, अपने वो होते हैं जिनके पास दर्द होता है। तो इनके साथ हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो कि अब वैसे अपने हों, लेकिन असल में जो अपने होते हैं वो ना हो। हम बड़े खुशनसीब मुल्क में रहते हैं जहाँ हमारे अपने मौजूद हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट जैसे लोग मौजूद हैं, ईदी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, जहाँ हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, सलानी ट्रस्ट मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे दुखों को समेटा हुआ है। लेकिन आप सबकी डोनेशन की वजह से सारिम बर्नी ट्रस्ट को आप डोनेट करते हैं, ये लोगों का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उस जगह से खींच के उनकी ज़िंदगी में वापस लाते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जहाँ दुख होता है, जहाँ तकलीफ़ होती है, वहीं खुशी की एक लहर भी दौड़ती है। आज देखें फिर एक खुशी की खबर हमें मिली कि हमारी एजेंसीज़, हमारी आर्मी की वजह से फैज़ शाह अपने घर वापस पहुँच चुके हैं। उस माँ से उसका हाल पूछने का जी चाहता है कि जब उसने उसे गले लगाया होगा इतने दिनों बाद, और जिसको ये भी खबर ना हो कि मेरा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा। हम अपनी आर्मी को, अपनी जेसेस को सलाम करते हैं। इनकी वजह से आज हम महफूज हैं और हमें ये यकीन है कि खुदा न खास्ता हमें कुछ होगा तो यह है ना, वापस आते हैं यहाँ। सारिम भाई, जब आप यहाँ से उनको लेके गए नीलोफर को, तो उनकी क्या कंडीशन थी, कैसा उनका बिहेवियर था? वो अपने इलाज के लिए आमादा हुई थी खुद, या बहुत मुश्किल से आपने उनका इलाज के लिए आमादा किया? डॉक्टर नीलोफर एक पढ़ी लिखी, बिल्कुल एक समझदार खातून है। जब लेके जा रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो उस पर वो पहले एहतजाज किया कर रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ जोर इन लोगों का ज़्यादा है, इनके आगे झुक जाना ज़्यादा बेहतर है। फिर वो कहने लगे अच्छा ठीक है, हमें अपना पता नहीं क्या करने दो, लॉक करने दो, क्या करने दो। फिर करा करके और फिर वो आराम से चली गई। फिर उनको किसी ने ऐसे पकड़ा भी नहीं कि आप चलें, वो चली गई। और हाँ, उधर जाके तंग बहुत करती रही कि मुझे घर जाना है, मुझे घर याद आ रहा है, मुझे घर जाना है। और यहाँ अकेली रहती थी? अकेले, कोई भी नहीं। तो खाना वाना कौन बनाता था उनके लिए? आपको हैरत होगी, इधर उधर से कहीं पता नहीं पड़ा हुआ ले आती थी, कहाँ से ले आती थी। कचरा जमा करती थी, अंदर रूम में कचरा जलाती थी, जब गर्म करना होता तो उस कचरे के ऊपर गर्म करती थी। आप जब पानी नहीं है तो सोचे धुलता क्या होगा, ठीक है। जब गैस नहीं है तो सोचे पकता क्या होगा। जब बिजली नहीं है और हीट स्ट्रोक के अंदर ये औरत यहीं इसी हाल में रही है। और पिछले साल का हीट स्ट्रोक तो हम भूल भी नहीं सकते। देखिए, इतने लोग, हम अगर अपनी इंसानियत की बात करें ना, और हम दूसरे को पागल कहें, जनी मरीज कहें, कुछ भी कहें, तो उसी वक्त तो फिर आपको सही होकर के दिखाना है ना, और आपको बेहतर करके दिखाना है उसके साथ। हमेशा से ना हमें दूसरों पे तनकीद करने के बजाय, किसी के ऊपर भी, किसी भी इदारे पे तनकीद करने के बजाय, पहले अपने आप को तो ठीक करें, अपने मोहल्ले को ठीक करें, अपने इर्द गिर्द को देखें, अपने नेबर्स को तो ख्याल रखें। हकूक़ लिबास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका पहला सवाल किया जाएगा। भूल चुके हम इसको, सबसे इम्पोर्टेंट वो खुदा कहते हैं ना कि मैं अपनी इबादत का तो शायद माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद इसलिए माफ़ नहीं करूंगा जब तक वो शख्स तुझे माफ़ नहीं करता। यहाँ बिल्डिंग में बच्चों ने, लोगों ने इतना उस औरत को परेशान किया। आते ही मुझे सबसे पहला सवाल उनका ये था, ये लोग फिर तो मुझे नहीं तंग करेंगे, ये बच्चे तो मेरे पीछे नहीं लगेंगे। वो पागल नहीं थी, उस औरत को पागल बना दिया गया। चाहिए था उसको, वक्त चाहिए था, लोगों ने उसको पागल बना दिया। फिर अगर इस कंडीशन की बात करें तो आप ये देखें, ठीक है, सफाई नहीं करने देती, घर में नहीं, कोई ना कोई तो आता ही था ना, फिर भी उसके बावजूद। मैं यहाँ देख रही हूँ कि अल्लाह, अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन के जब खुदा और मोहम्मद और उसकी आल की मानने वाली हो तो फिर उनकी हिफाजत करने वाले भी वही होते हैं। उन्होंने ही की है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जब हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें जो हमारी आंखों ने, जो हमारे जहन ने बताया, उसके मुताबिक इस औरत को जिंदा नहीं रहना चाहिए था। न सिर्फ जिंदा, मरे हुए भी कई दिन होने चाहिए थे, तो लोगों को पता चलता। जो हकीकत आपको मैं बता रहा हूँ, जो हालात मैं यहाँ देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उस वक्त जो आप लोगों ने हालत देखे होंगे कि सारिम भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगी कि बहुत मुश्किल था इन हालात में ज़िंदा रहना। जंग लगी हुई, काली स्याह हुई हुई चीज़ें हैं। आई थिंक वो फ्रिज 1901 में कभी चलता होगा, फिर उसके बाद वो भी ख़राब हो चुका, और शायद हो सकता है उसके अंदर भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हों। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि कुछ देर बाद हम ज़रूर आपको बताएंगे कि अब डॉक्टर नीलोफर कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हालत में है, क्या उससे बदतर हालत में है या बेहतर हालत में है, समा ने उनके लिए क्या किया, और सारिम भाई के साथ मिलके हम उनके लिए क्या कर पाए हैं, ये सब कुछ आप यकीनन जानेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन अगेन मैं वापस आऊँगी सारिम भाई की तरफ। सारिम भाई, जब आप यहाँ से उनको लेके गए, आपके वहाँ ट्रस्ट में लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, हमारे ट्रस्ट में सब ये जानते हैं, चीज़ें ये होती रहती हैं हमारे साथ। इस टाइप के लोग, परेशान हाल लोग आते रहते हैं। बल्कि एक दिन शेल्टर में एक लड़की है, किसी से भी बात नहीं करती, किसी से भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती, अपनी एक साइड पे एक बेंच पे बैठी रहती है, सर्दी गर्मी वहीं गुजारती है। एक दिन मैं निकल रहा था, मेरे पीछे ही मुझे उसने लात मारी ज़ोर से। एकदम लड़कियों को, दूसरियों को गुस्सा है, वो जहनी मरीज़ है बेचारी वो। तो वो
हम लोग इन चीजों के आदी होते हैं, इनके हाथों से पिट जाना, इनके मुंह से कोई बुरा भला सुन लेना, हम पता नहीं कब का दबा हुआ गुस्सा और कहाँ का दबा हुआ गुस्सा वो निकलता मैं होगा। आपको बताऊं, जब ये आप पे गुस्सा करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको मारते हैं और आप उस वक्त इनसे प्यार से बात करें तो जिंदगी भर ये आपके गुलाम बन के रह जाते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं, ये मैंने जिंदगी में यही देखा है, जब आपने उनके साथ पलट के वैसे ही रिएक्ट किया तो वो कोशिश करता है मैं इससे बड़ा पागल बन के दिखाऊं, लेकिन जब आपने उससे पलट के प्यार से बात किया तो उसके अंदर एक एहसास जागता है कि नहीं, प्यार मौजूद है। अगर मैं भी प्यार में आऊंगा या आऊंगी तो अगले से भी मुझे प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं ना, पागल को देख के पत्थर मारने वाला हिसाब, वो वाला जहन बना हुआ है हमारे यहाँ। कोई किसी की मदद करने को तैयार है ही नहीं, एक नॉर्मल की मदद करने को तैयार नहीं है। एक मोटरसाइकिल सवार या राह चलता राहगीर रोड पे गिर जाता है, गाड़ी मार जाती है, तमाशा बहुत बड़ा लग जाता है, बहुत बड़ा, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल ले जाने के लिए कोई भी नहीं होता। तैयार। मूवीज बना रहे होंगे, सबके कैमरास निकल आएंगे, मूवी बना रहे होंगे, अपलोड हो रहे होंगे, आपके सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएंगे वो सब। बेशर्मी, मैं तो इसको कहूंगा कि बेशर्मी का बाजार गर्म है इस हवाले से कि खड़े होके आप मूवी बना रहे हैं, आप उसको ले जाओ, अस्पताल नहीं लेकर के जा रहे। और होता क्या है, सोच क्या होती है, हम फंस जाएंगे, ये नहीं सोचते अगर ये इधर गिर गया तो अगली जगह पे हम गिर सकते हैं, और कोई तीसरा ये सोच के चला जाएगा कि हम फंस जाएंगे। तो ये हमसे हम निकल जाएं और हम जो है ना अब लोगों के लिए जीना शुरू कर दें। जब हम जीना शुरू करेंगे, न सिर्फ हम बेहतर होंगे, वो लोग भी बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह ही बेहतरी आएगी। हमें आंख उठा के नहीं देखना है, हमें आंख को थोड़ा सा झुका के अपने आप में देखना है, क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है, क्या हमें जो हम अपने आप को बड़ा कहते हैं ना, मैं, इस मैं को थोड़ा सा निकालें। और अगर लोगों से अगर हमने मोहब्बत शुरू कर दी तो आप वैसी आखिरत आपकी संवर जाएगी। वो तो कहता है तुम मेरी लोगों से मोहब्बत करना शुरू करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दूँगा। नहीं कर पाते हम बहुत उस तरह उसकी इबादत को, लेकिन ये सबसे बड़ी इबादत है अगर हम हकूकुल इबादत पूरी कर देते। ये सारा ताजिर इलाका है जिधर हम इस वक्त बैठे हैं। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ अगर ये सारे ताजिर मिलके जरा से मुझे तो हटा दें अभी, बिल्कुल मेरा काम पूरा हो गया। मैंने एक औरत को उसके नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले आया अल्लाह की मदद से। अब अगर ताजिर मिलके अभी आ जाए हमारा प्रोग्राम देख करके और आ करके इसके इस घर को वाकई ये घर बना जाएं ये लोग, तो आप सोचें तो सही हम कितना अच्छा मैसेज देंगे। मुझे इस बात का यकीन है कि इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे मुल्क में इंसानियत बहुत है, बहुत है। हमारा पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क से बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, दुनिया के किसी कोने में मेरा शो देखा जा रहा होगा, मुझे ये यकीन है कि वो जब ये हाल देखेगा ना, ये वाला हाल देखेगा, तो वो कहेगा कि मैं आऊँगा अपनी बहन के घर ठीक करने के लिए। कोई औरत होगी तो कहेगी कि मैं आऊँगी अपनी बहन का घर ठीक करने के लिए। एक कॉलर, हम उनसे बात करते हैं। मुझे नहीं अंदाजा कि कैमरे वो दिखा पा रहे होंगे जो हमारी आंखें देख रही हैं। बिल्कुल दिखा पा रही हूँ और मैं चाहूँगी कैमरामैन जरूर दिखाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही मैं है? हैदराबाद से प्रोफेसर कौसर बात कर रही हूँ। कौसर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। ये जो सारम साहब हैं, जी जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक और फलाही काम करते हैं। बेशक। लेकिन ये है कि मुझे इनसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बिल्कुल कीजिए। वो ये कि किसी मजलूम को अगर टीवी पर लेकर आते हैं, जी कौसर साहिबा कहिए, हम सुन रहे हैं आपको। करवा दिया करेंगे। बाकी ये कि आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है इनकी। हेलो, अच्छा, मैं जहाँ तक आपकी बात को समझी कि हम किसी मजलूम को टीवी पे लेकर आते तो क्यों लेकर आते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम ड्रामे देखते हैं तो हम क्यों देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं तो क्यों देखते हैं, फैशन सीखते हैं, हम इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं कि हमारे माहौल में क्या बुराइयाँ पनप रही हैं और क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। हम हर कहानी का एक जो लुब्बे लुबाब होता है, एक सबक होता है, वो लेते हैं।
تو یہاں جب ہم لوگوں کے اوپر اس طرح کے کیسز کو لے کے سامنے آتے ہیں تو ہم آپ کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کو جگاتے ہیں, آپ کے اندر سے انسانیت کو کھینچ کھلاتے ہیں جسے آپ نے کہیں دبایا ہوا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے رمضان کے شو میں کیسے کیسے بچیاں آئیں, آپ بھی بالکل جواب, کیسے کیسے لوگ آئے جن کے لیے ہم نے لاکھوں روپے سیکنڈوں میں جمع کیے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے بھائی وہ وہاں جن کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے کسی کی مدد کریں گے. جی سارم بھائی. یہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. یہ جو احمد یہاں سے بلڈنگ سے آیا, یہ میرا چاچا کا لڑکا تھوڑی تھا, یہ مجھے ٹی وی پہ دیکھ کے ایسے ہی پروگراموں میں دیکھ کر کے آیا. آج جو یہ پروگرام چل رہا ہے تو یہ دیکھ کر کے نہ جانے اب اور کتنے لوگ آئیں گے. حوصلہ بڑھے گا. لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے بالکل بھی, اور اگر آپ ان چیزوں کو نہیں لائیں گے تو کون جانے سارم کون ہے, سارم کون ہے, اور آپ کیسے کسی کی مدد کر پائیں گے. کس کو پتا کہ ہم مدد لینے کس کے پاس جائیں, مدد کرنے کیسے کس کے پاس جائیں. تو یہ میسج ہوتا ہے, یہ میسج پروگرامز ہوتے ہیں. اس میں جو حالت میں تھی وہ ایک میسج تھا, آج جس حال میں ہوں گی وہ ایک میسج ہے. بالکل. اور اس میں آپ لوگ آگے بڑھیں. میرا ایک سوال ہے, نہ میں ٹی وی پہ آؤں نہ میں ٹی وی پہ لاؤں, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, میں نے سب سے پہلے یہ کہا اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں اور مجھے اتنی دور سے آنا پڑ رہا ہے, کیوں؟ آپ کی انسانیت کہاں ہے؟ جب میں نے آپ کی کال لی اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ تاجروں کا علاقہ ہے. اگر سب مل کے بھی ایک بہن کے لیے کھڑے ہو جاتے, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہماری بہن ہماری بیٹی ہے, اس کے سر پہ چادر اسی طرح قائم رہنی چاہیے, تو اس کا علاج بھی ہوتا, اس کا یہ گھر بھی تعمیر ہوتا, اس کا گھر صاف ستھرا بھی ہوتا. آج اس کو کسی ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے سارے ٹرسٹ خالی ہو جائیں, وہ بنجر زمینیں پڑ جائیں, لیکن ہمارے اندر کی انسانیت جاگے گی تب یہ خالی ہوں گے. اگر نہیں جاگے گی تو سارم بڑھنی جیسے لوگوں کی ہمیں تلاش رہے گی, ان کے ہم محتاج رہیں گے ساری زندگی کے لیے. شاید آج بھی کوئی شو دیکھ رہا ہو, خدا نہ خواستہ اس کے گرد ایسی کوئی کہانی موجود ہو, تو آپ سبا سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ سارم بھائی کے پاس جا سکتے ہیں. ہم ان کی جہاں تک مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں گے, کیونکہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے جہاں تک سما سہارا بن سکتا ہے وہ بنے, اور ان کے ساتھ مل کے بنے تو کیا کمال ہے. ظلم ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, ذاتی ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, اس کی ایف آئی آر تک نہیں کٹ رہی ہوتی. اس کے لیے لوگ جو ہے نا میڈیا کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں کہ جو کسی چینل کے دفتر کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے احتجاج کریں, ان سے ریکویسٹ کریں, تو پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. آج عالم بے حسی کا اتنا چھا گیا ہے, تو یہ ٹی وی یا یہ پروگرام یہ سب آج مجبوری ہے. صحیح. ایک کالر ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. ہلو. سارم بھائی کو جو ہے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اس کام کے لیے, اس طرح سے لے کر آنا اور لوگوں کی مدد کرنا. جہاں اپنے اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہاں یہ غیر ہو کے اپنوں سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. میں بہت دل کی گہرائیوں سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. میں نے پہلے بھی شو دیکھا تھا نیلوفر کا, وہ کس حالت میں تھی پہلے, اور اب دیکھ رہی ہوں تو کافی مجھے لگ رہا ہے کہ چینجز آئی ہیں. بہت شکریہ. اور ابھی آپ جب ان سے ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اب ہم نیلوفر کو پردہ ہٹائیں گے, نیلوفر سے آپ کو ملائیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کیا زمین اور آسمان کا فرق آیا ہے, کہ صرف توجہ, علاج, توجہ. میں یہ چاہوں گی صاحب میں بتائیں کیا علاج کیا ڈاکٹر نے ان کا, کیا دیکھیں وہ علاج تو ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے. سائیکولوجیکلی ان کو پرابلم تھی. مجھے تو جہاں تک شو دیکھ کے لگا کہ ان کو توجہ چاہیے تھی. یہی بات ہے, اصل بات یہی ہے. مجھے بھی یہ اندازہ ہے, میری بات تو ڈاکٹر سے نہیں ہے اس پہ تفصیلی, لیکن اندازہ یہی ہے کہ ماحول چاہیے تھا, توجہ چاہیے تھی. میں آپ کو بتاؤں, وہ بات پہلے کہنا چاہتا بھول گیا, جب ہمیں علم ہوا تھا تو ہم نے فوری طور پہ ان کو کھانا پینا چائے 3 وقت پہنچانا شروع کر دیا تھا. آپ یقین جانیں, یہاں ہماری اسٹاف کی لڑکی نے آ کر کے ان کو خود کپڑے بھی بدلوائے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے مارا بھی, لڑی بھی, لیکن ان کو سمجھ آنے لگی, کوئی ان کے لیے کچھ کر رہا ہے. میرے ایک احساس ہوا کوئی ہے جو میرے لیے آتا ہے روزانہ. جو بچہ ہمارا عبداللہ وہ کھانا لے کر کے آتا تھا, اس کا نام تک ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ عبداللہ تھا, وہ کھانا لے کر کے آتا تھا. یعنی ان کو یاد سب تھا, پتہ سب کچھ تھا, لیکن اپنے آپ کو وہ بس, کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا, خودکشی کہتے ہیں حرام ہے, لیکن کہتے ہیں بس چھوڑ دو دنیا کو, ایک کنارے ہو جاؤ, خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو شاید وہ اس سوچ میں چلی گئی تھی کہ ٹھیک ایک وقت آئے گا جب اس حال پہ پہنچ جاؤں گی اور خود ختم ہو جاؤں گی. لیکن وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اس کو کون چکے. اللہ نے ان کو رکھنا تھا اور ایک بہتر انداز سے رکھنا تھا, اور آپ کو ذریعہ بنانا تھا, وسیلہ بنانا. اور اگر میں دیکھیں نا ہوتا, اگر صرف شو کی حد تک بات ہوتی تو شو تو ہو چکا تھا.
आज शो की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जो आप लोगों की मदद हम मांगते हैं ना, जब आप लोगों से कहते हैं कि आप हमें डोनेट करें, तो हमेशा हम जब आप लोगों का पैसा आपसे लेते तो हम वो वापस दिखाते कि क्या हमने उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। ऐसे कितने ही बच्चों का आपने पहले देखा होगा, इंडिया के गया था वो बच्चा, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, फिर दोबारा साहिर ने उसके लिए शो किया था, जब वो ठीक होकर आया था। बिल्कुल ऐसे ही नीलोफर को हमने पहले दिखाया और अब नीलोफर माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। अब वो सही को सही और गलत को गलत समझ रही है। अब उन्हें पता है कि उनके इर्द गिर्द लोग भी मौजूद हैं, उनसे प्यार करने वाले भी मौजूद हैं और उनकी रिस्पेक्ट वैसी की वैसी है जैसे वो थी। वो एक प्रॉपर डॉक्टर थी और माशाल्लाह से अब मुझे यकीन है और मैं आज पहली दफ़ा उनसे मिलूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कहूँ कि प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को दोबारा जारी रखें, क्योंकि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। चाहिए हमारे माशरे को अच्छे डॉक्टर्स जो अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि वो खुद एक तकलीफ से गुजरी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तकलीफ को बेहतर तरीके से जान ये सकें। इतनी ज़हीन है माशाल्लाह, ये इंजीनियर होती तो ज़्यादा बेहतर होता। सच बता रहा हूँ आपको, आप अभी बात करेंगे आप हैरान रह जाएंगे इनसे बातें करके। और उस हाल के यानी 4-5 महीने हो गए इस बात को, मैं एक बात भूल गया था, जब इन्होंने बोला तो मुझे याद आना शुरू हुआ। यानी इतनी ज़हीन है माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, जब खुदा सब कुछ लेता है तो आपके पास कुछ ऐसी कुव्वतें दे देता है, ताकतें देता है जो बिल्कुल गैबी होती है। जातियाँ ऐसी होती चली गई इनके साथ कि कुछ 30-40 लाख रुपए बैंक में पड़े थे, वो मैनेजर साहब खा गए, हजम कर गए, उसमें पता नहीं क्या क्या चक्कर। अब देखें, अब ये नॉर्मल होकर के आई हैं, अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़ जो होती है ना इंसान की, कभी कभी डॉक्टर हाथ भी काट देता है, पाँव भी काट देता है, या और कोई जिस्म से ऐसी चीज़ निकाल देता है कि ज़िंदगी बच जाए, तो पहला स्टेप हमारा ये था कि ज़िंदगी को बचाया जाए। आज ज़िंदगी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ चीज़ें उसमें जो है ना करते रहेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी भी होती रहेंगी। कोई नेक नियति है तो अल्लाह अच्छी यहाँ आप इस घर के लिए क्या चाहते हैं कि लोग बढ़ के देखिए, मैं एक कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मोटर कार कंपनी थी, उसने बोला था और फिर मुनकिर हो गए। ये बहुत दुख की बात होती है, अमूमन हमारे साथ ये हमें फेस करना पड़ता है। और मगर मुझे उम्मीद है वो मुनकिर हो गए तो अभी कोई ना कोई देख करके कोई ना कोई सामने आएगा, और नहीं आएगा तो हम खुद बैठे में इसको भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये तो देखिए जिंदगी का असूल है, ये खुदा ने जो कुदरत का असूल है, ऐसे ही है कि जब कोई नहीं होता तो फिर वो उसकी ज़ात है, वो वसीले बनाता है। हमारा तो ईमान, हमारा यकीन सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि सब उसने ही करना है, हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। अब देखना ये कि कितना हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। चलिए चल के नीलोफर साहिबा का पैकेज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी नीलोफर साहिबा से। मैं हूँ प्रोफेसर मिस नसीम बेगम, मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम है डॉक्टर, समझा करो, समझा करे भाई। आई एम ए फ्लैट ओनर सिंस देन 30 years। नहीं, जब ये बिल्डिंग बनी थी जब से फ्लैट मेरे नाम है। सही है या नहीं कि मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, और जब सर्विस मिली स्कूल हेल्थ में तो वहाँ सर नहीं खपाना पड़ा। जैसे आपका बच्चा किसी स्कूल में हो है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई अम्मी अब्बू को बोलूँगा कि जब भाई डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो दिला दो, तो वो अम्मी बोलेगी स्कूल की डॉक्टर ने खुद क्यों नहीं दी। ये है पब्लिक मीडिया, बाहर खड़ा पर सुन रहा है। ठीक है भाई, दवाई नहीं बढ़ रही है ना राजवानी साहब, और मुख्तलिफ जगहों पे किराए की जगहें थी ना वो तो। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने एक पैकेज देखा, अब मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड, और मैं बहुत इस वक्त प्रिविलेज महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और मुझे खुशी हुई अपने घर के अंदर आके। और आप कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा ये बताइए ज़रा, मेरी शक्ल वकल देख के मैं ठीक ठाक हूँ? कोई बीमारी शिमारी कोई नज़र आ रही तो उसका भी इलाज फ़ौरन बताना है डॉक्टर साहब आज आपने। नहीं, आप तो बीमार नहीं हो। पक्का? कुछ नर्व्स वर्स तो चेक कर ले पहले मेरी, है ना? सेट चल रही है? प्रेशर का आला वो नीचे है, हाँ वो गाड़ी में से मंगवा। अच्छा ठीक है, सारम सर का भी देख लेंगे और इसका भी देखेंगे, हुमा का भी देखेंगे। और 2 शॉपर है ना, एक ब्लू वाला। ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आपको ये पूरी टीम याद है जब ये पहली दफा आपके घर आए थे? सब याद है। तब क्या हुआ था, कुछ याद है आपको?
भाई ये आए थे तो अनएक्सपेक्टेड था ना, हाँ यानी कोई बिला एक्सपेक्टेशन वजह हमारे घर में आ जाए तो फिर तो इस तरह से ऐसे कैसे मूवी welcome बनाने करते हैं हैं? और ये करने हाँ, हैं। तो वो अगर वैसे ही अगर खुद से कॉल करें मूवी बनाएं तो फिर दूसरी बात होती है। सही। मूवी बनाएं, एल्बम बनाएं, हाँ। वो करें अपनी विल से। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें, अगर वो उस दिन हम लोग ना आते, मूवी ना बनती, डॉक्टर साहब आज हमारे पास वापस आ गए, सही हो? सही हूँ मैं बिल्कुल। है ना? हाँ, तो फिर अब आप थैंक यू कहेंगे या नहीं कहेंगे? थैंक यू। तब अच्छा, बात- कितनी- अब पूरी अभी टीम को कितनी थैंक सही यू हैं आप? बोलेगी ना। हैं? कितने % सही हैं अभी आप? अभी कितने % सही है? हाँ आप खुद क्या फील कर आप रही हैं? खुद क्या कितने feel कर रही % सही हैं आप? अभी मैं बस सही हूँ। अब बिल्कुल सही है। 100% ना? डॉक्टर साहब अब प्रैक्टिस जारी करेंगे अब दोबारा क्यों से? नहीं करेंगे? है ना? हाँ। इतना पढ़ाई में भी आपको पता है, स्टार्ट में मैं ये कहती कि डॉक्टर बनना तो आसान काम है ही नहीं, सारी जिंदगी आप पढ़ते रहते हैं क्योंकि नई से नई मेडिसिन नीट के ऊपर जबरदस्ती नहीं, हाँ। जबरदस्ती कॉल नहीं कि आप जबरदस्ती आओ, हाँ यानी पुरानी डॉक्टर है, जब से ये बिल्डिंग बनी है, घर बना है, जब से है। अगर आपको खुद किसी चीज़ की ज़रूरत हो डॉक्टर की तो आप आ सकते हो, तो दवाई वाई लिखवाने। ज़बरदस्ती वो पर्चे छपवा के अखबारों के अंदर रख के भाई वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, हाँ हाँ वो बात नहीं करनी, हाँ वो नहीं करते। वो वेस्टेड जा जाए। हाँ नहीं, आप बोर्ड लगाइएगा ना टाइमिंग के साथ, हाँ, उसके अलावा timing कोई के साथ। डिस्टर्ब नहीं करे आपको। सही। क्लिनिक का टाइम बना दीजिएगा आप अपना, आप बनवा के देंगे बस ना? वो मैं आपको बनवा के जैसे दूंगा। बाजी ने बनवा के दिया था ब्लू कलर का शहजादी मेडिकल सेंटर, वैसे ही बना के वैसे देंगे, ही। डॉक्टर शहजादी मेडिकल डॉक्टर, सेंटर, बस और ठीक है। टाइमिंग जो आप मकसद ये कहें उसमें था 3 से 6। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो दोपहर। बच्चा आपके लिए खाना लेकर आता था उसका नाम याद है आपको? कौन बच्चा? यहाँ तो आप बहुत यहाँ- सारे मेहरबान थे, बहुत सारे लोग लेके आते ऑफिस से जो लाता था, ऑफिस से ऑफिस जो से। खाना लेकर आता, जो हम भिजवाते थे सारिम ट्रस्ट से जो आपके लिए खाना लेकर आता, सारिम भाई अब्दुल्ला आता था ना? हाँ, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उसका काला जग भी याद है, काला जग भी याद है? और उसपे बिल्लू बना हुआ था, अच्छा लाइन बना हुआ था, लाइन बना हुआ था। उससे भी मारा था एक बार आपने। मुझे मारा था आप अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब गुस्सा किन बातों पे आता था? लोगों के वो रवैयों दाल पे रोटी आता दाल चावल लेके आता था। था? सिर्फ दाल रोटी। चावल आपको पसंद क्या खाने में? मुझे खाने में लाइट गिज़ा पसंद है, तो ऐसे दाल ही चावल से लाइट गुजर डॉक्टर साहब उसके बिस्किट। बाद तो सिर्फ चावल या दाल पी ले बंदा। बिस्किट पसंद है, अच्छा। चिप्स वगैरह पसंद है, बस ये तो ऐसे। जंक फूड हुआ डॉक्टर साहब। आप मुझे पता है जब आप अपनी बच्चों को लिख के देती होंगी ना प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके ऊपर लिखती होंगी जंक फूड नॉट अलाउड, कोई चिप्स नहीं खाने, कोई बर्गर नहीं खाने, है ना? तो भारी भारी पराठे और भारी भारी तंदूर की रोटियां और खाने, हाँ वो तो नहीं खाने चाहिए ना, हाँ उससे दिमाग खराब हो जाता है इंसान। अच्छा, मेरी आंखें कैसी थी जब मैं आया था पहले? पीली थी, पीली थी। और अभी? अभी सही है, अभी अभी सही सही? नॉर्मल अभी हो गई। नॉर्मल है। ताज़िया बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें हैं जो अभी हम डॉक्टर साहिबा से शेयर करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी डॉक्टर साहब आपने सब नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम और डॉक्टर नीलोफर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कहाँ रख रही हैं? आपने भी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना है, अभी तो आपने निकाला था जल्दी से। आज जरा पता चले जरा मैं कितनी सेहतमंद हूँ, कितना लहू दिया है मैंने रमजानों में, ये भी पता चलेगा। आपने रोजे वगैरह रखे? रोजे सारे रखे डॉक्टर साहब। हाँ जी, अब बताइए। इसको अपने हाथ में, ये मैं हाथ में डॉक्टर साहब यहाँ लगा लूँ? यहाँ लगा ले, मैं तो लगा रही थी ना पहले। ये रहा, यहाँ लगा लूँ? क्या 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 ऊपर ऐसे? हाँ ऐसे, ठीक है। ओके, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। डॉक्टर साहब से भी और बहुत कुछ जानना है, लेकिन कहते हैं ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बोलना नहीं है, डांट पड़ जाएगी। इससे पहले चुप हो जाओ। कह दीजिए डॉक्टर साहब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 120/80 है। 120/80 बिल्कुल परफेक्ट है ना? बिल्कुल परफेक्ट। जबरदस्त। मैं तो समझी थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा नहीं।
आप गज़ा पे कंट्रोल करेंगे? जी, गज़ा पे मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ और अच्छा खाती हूँ, सेहतमंद खाना खाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, किस्सा कहाँ से शुरू होता? आपके साथ यहाँ एक खातून भी रहती थी, आपकी बहन थी वो? हाँ। क्या नाम था उनका? सगी बहन। सगी बहन थी? सगी बहन। क्या नाम था? प्रोफेसर मिस नसीम बेगम। प्रोफेसर मिस नसीम बेगम। जी। आप दोनों का कैसा ताल्लुक? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। उसने तो मुझे पाला है। उसने पाला आप? वो यानी 20 ईयर समझ लीजिए। वो के बाद मैं पैदा हुई प्रोफेसर मिस नसीम बेगम के। डॉक्टर साहब, आपने शादी क्यों की? शादी क्यों की? शादी क्यों नहीं की? बस शादी नहीं की, खुद से तो नहीं की, कुछ हालात होते हैं, माहौल होता है। तब आपके वालिदैन हयात थे? हाँ, वालिदैन हयात। तो कभी वालिदैन ने भी नहीं ऐसे, क्योंकि हमारे माशरे में तो वालिदैन घर में जब आके जी जी हमने ये घर लिया था, जी जी लाइन में रखो। अनमैरिड तो मैं जब भी थी, ये इसमें रख दो जी, वो रख देंगे, ये रख। हाँ जी, फिर बताइए। अनमैरिड तो मैं जब भी थी, जब भी मैं छोटी थी यहाँ आई थी और अपने पेशे से मुंसलिक थी। इतनी नामवर डॉक्टर और खूबसूरत हसीन, आपकी मैं भी तस्वीरें देखती थी पुरानी डॉक्टर साहब, तो तब तो बड़े मतलब प्रपोजल्स भी आए होंगे, रिश्ते भी होंगे, तो क्यों आपने खुद भी नहीं चाहा, या आपको इतबार नहीं था लोगों को? रीज़न क्या था? कुछ अपने घरेलू सेट करने के माहौल थे, इस यानी अपने घर के साथ लिंक थी, अपनी सर्विस थी, हॉस्पिटल में जाना, कॉलेज में पहले सर्विस थी, स्कूलों में थी, फिर हॉस्पिटल में थी, उसमें कॉलेज में थी, स्कूलों में थी, फिर कॉलेज में थी, फिर हॉस्पिटल में। सही, चेंजिंग होती रहती है ना। जी जी जी, ट्रांसफर होता रहता है। तो उन वजह से शादी ब्याह कभी आपने ध्यान शादी ब्याह अटेंड कर लेते थे। अच्छा, अपनी शादी पे ध्यान दें, कौन सा टाइम लगाएगा, 2 दिन मेहंदी लगाए, फिर माइयों बैठे, फिर शादी हो, फिर है ना, इन झंझटों से बचना चाहते। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये इतना खूबसूरत रिश्ता जब खुदा ने बनाया है, नहीं, सबसे पहला रिश्ता अगर इस ज़मीन पे, इस रूह ज़मीन पे देखें तो वो आदम हव्वा, वो अम्मा हव्वा और बाबा आदम का है। तो इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया इसलिए गया था ना कि एक जोड़ा होता है, वो आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है। तो ये जोड़ा क्यों नहीं आपने बनाया? आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके क्यों नहीं? आपने अपने आपको खुद को अकेला किया, या आपको लगा कि लोगों ने आपको अकेला कर दिया? कैसा रवैया था लोगों का जब आपकी बहन भी आपके लोगों साथ का थी? रवैया ये था कि डॉक्टर को अपने पेशे से मुंसलिक रहना चाहिए सिर्फ हाँ, उनका उसको जीने का हक नहीं है। उसको बस शादी ब्याह का अगर वो तस्वुर करेगी तो वो अपने घर की होकर रह जाएगी, फिर वो सर्विस वगैरह पे ये नहीं जाएगी। लोगों का रवैया था या डॉक्टर साहब आपने खुद सोचा था? शादी ब्याह तो हम पब्लिक का भी कहना ये था कि हमने मना तो नहीं किया, लेकिन इंसान को सोच समझ के। मैं बताऊं बहन, ये पढ़ी लिखी और काम वाली खातून थी, इनका कभी ध्यान शादी की तरफ गया ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना, कभी सोचा ही नहीं इन्होंने। बस अपनी उस तेजी में होंगी कि बस मैंने कुछ करना है, खिदमत करनी है, लोगों को देखना है। भाई वही वाली बात जैसे भी हम बात कर रहे थे कि कुछ जिम्मेदारियां माशरे की भी बनती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक बहन जिसने 20 साल इन्हें पाला है बकायदा, जो इनके साथ थी, कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी बनती थी कि उनके बाद देखिए हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। मैंने आपने कभी किसी ने यहाँ रहना नहीं है, अब्दी तो हमारी ज़िंदगी वही है, वहाँ से शुरू होनी है। ये तो हम एक फ़ानी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो हमारे करीबी रिश्ते, उनको ज़रूर चाहिए कि अपने जाने के बाद के लिए चीज़ों को तय करके जाए, है ना? मगर पता है लोग नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ अगर कोई अच्छा नौकर मिल गया तो हम कभी नहीं चाहते कि इसकी अच्छी ज़िंदगी बने, क्योंकि कहीं जो अच्छी ज़िंदगी बन गई तो हमें छोड़ के चला जाएगा। तो हम लोग बहुत इस तरीके से सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से होती थी उस वक्त? क्या मतलब? जब आप इस घर में अकेली रहती थी और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों से, लोगों के रवैयों से बच्चे आपको तंग करते, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देती थी? उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। आप क्या करती थी सारा दिन? 2016 चल रहा है जी, इसी में ही ऐसा हुआ। 2015 में भी नहीं था। 2016 में आप यहाँ से जब गई थी तब आप कहती थी कि यहाँ के बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं। हाँ, वो ज़्यादा मसला ये था कि इन लोगों के यहाँ नीचे कुछ तामीरात होती है। सही। तो वो अपना कुछ वेस्टेड चीज़ें बोरी में भर के रख देते थे।
मकान बना है, टाइल लगवाएंगे, है वो है। तो वो जब बन गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको वापस भिजवाना चाहिए। बिल्कुल, और क्या। नया मकान तो नहीं बन रहा है, फ्लैट से बन रहा है, तो वो उठा उठा के कंकरियाँ और पत्थर वत्थर मारते थे। तो उसकी वजह से जाहिर है आप भी होती हैं तो कोई भी परेशान- होगा तो उसको रिएक्ट करेगा। ये मसला सही। इनके पाँव जिस वक्त हम लेके गए इतने मोटे मोटे सूजे हुए थे। क्यों? खड़ी रहती थी, बैठती नहीं थी। फिर वो लोगों ने मारा था, यहाँ की चोट वोट लगी थी। चोट लगी थी आपके डॉक्टर साहब पाँव में? क्या हुआ था? हाँ, ये बस बार बार ऊपर नीचे चढ़ना, उनको समझाने के लिए ना, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ। वो जो आपको बच्चे ने मारा था जिसकी वजह से पाँव सूज गया था, वो क्या हुआ था? वो बताइए क्या हुआ था आपके साथ, जो बच्चे ने क्या किया था? बच्चे नीचे से वो पत्थर वत्थर मारते थे ना, वो जो बोरियाँ थी, वो हम आपको कहते भी थे, ये नीचे मेमन भाई रहते हैं, ताजवानी भाई थे कि आप हटा लो उनको सब। सही। एक स्टोर में बंद कर दो, कोई मदरसा वदरसा है उसमें। ताजवानी भाई तो आपको सपोर्ट करते थे ना? इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं डॉक्टर नीलोफर से और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और अब जानेंगे अब वो कैसा फील करती हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ बचपन की यादें ताज़ा करें। बचपन याद कहाँ के हैं आपके वालिदैन? इंडिया से? हाँ, दिल्ली पंजाबी सौदागरान। दिल्ली पंजाबी सौदागरान। हाँ। और कितने बहन भाई आप लोग? हमें 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई। एक बाजी, एक बाजी, एक भाई। बाजी की आज़ाद। डेथ हो गई बाजी की, जो आपके साथ रहती है। और एक 11 भाई मई 1999 को क्यों हुई कि गर्मी में से यही पानी है। हाँ। गर्मी में से आके पानी सर पे नहीं डालो, नहाओ नहीं। हाँ। वो बेहोश हो गई थी। फिर हीट स्ट्रोक हुआ था। हीट स्ट्रोक हो गया था। हाँ, तो बस यही वजह थी। हमारे घर के बराबर में नेबर में एक घर है, वो एक अम्मा है, एक उनकी बेटी है। तो उनको मैंने उठाया कि ये बाजी गिर गई है, इसको ज़रा मेरे साथ बेड पे लेटा लो। तो ये इस तरह से मैंने, ज़ाहिर है घबरा जाता है ना इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस तरह मैंने बाजी को लेटाया था। तो बाजी मेरी होश में थी सब, और उसको पैरालिसिस हो गया था हाइट का। तो उसके बाद उसकी खिदमत वगैरह मैंने की कोई 1 हफ्ता। फिर मैं ले गई कराची एडवेंटेज अस्पताल। सही। फिर मैं वही जगह सबको कहती हूँ नसीहत कि लानत कराची एडवेंटेज अस्पताल, लानत है NMI पे, न्यूरो मेडिकल इंस्टीट्यूट। केयर नहीं करते, केयर नहीं करते। वो अमेरिका की और डॉक्टर साहब आपने बताया कि अभी आपके एक भाई भी हैं। हाँ। भाई उस वक्त मुलाकात होती थी, भाई आते जाते थे आपसे, मिलते थे? तो पूरी समरी सुना देना इतना। फिर वहाँ पे बाजी रही 11 दिन वहाँ रही। उसके बाद बहन की जब मेरी अगर खुदा न खास्ता डेथ हो गई थी, मुझे अब भी यकीन नहीं है कि उसकी डेथ है, वो अलाइव है आप लोगों की शक्ल में, आप लोग सब हो। बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटी है कि नहीं? तो उसको ये कहना है कि आप लोग उधर ना जाओ, केयर करो घर में ही। सही। तो वो जिंदा रहती। अच्छा, उन्होंने उसको मिसमैनेज किया। बिल्कुल मिसमैनेजमेंट था। किस लिए? जेलसी थी, पेशेवर जेलसी थी डॉक्टर से, पाकिस्तानी डॉक्टर से अमेरिका लंदन वालों की पेशेवर जेलसी थी। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी प्रोफेसर को तो लाइव रखना चाहिए। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब क्या चाहती हैं आप? कैसी जिंदगी चाहती हैं? कैसी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? अब कैसी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? अब अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप लोग कह रहे हो कंस्ट्रक्टिव माइंड है, कंस्ट्रक्शन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिल्ड करेंगे। बिल्कुल। कुछ अगर कोई चीज़ टूट गई है उसको जोड़ेंगे। सही। जैसे कुछ गिरा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, उसको जोड़ेंगे। अगर ये इन लोगों ने अपने तौर पे कुछ सेटिंग के लिए किया था। क्योंकि एक एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप डॉक्टर साहिबा से पहली दफ़ा मिली थी, तब में और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हुआ क्या? ठीक है,
तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई, सालिम सर ने मुझे यहाँ भेजा, इनके पास केस आया तो उन्होंने माइक को जब तक करीब नहीं रखेंगे आवाज़ नहीं आएगी। सालिम सर ने मुझे यहाँ पे भेजा कि एक लेडीज़ है, इस तरीके से आप देख के आओ। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई तो इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, यहाँ तक कि ये मारने पीटने भी आती थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई इन्होंने मारा पीटा, अंदर नहीं आने दिया, लेकिन बहुत प्यार से इनको डील करके यहाँ तक हम लेके आए। जब मैं अंदर आई इनको खाने पीने का कुछ नहीं, ये 2-2 3-3 दिन भूखी रहती थी। फिर सर इनके लिए स्पेशल खाना भिजवाते थे, सुबह दोपहर शाम सब कुछ करते थे। फिर यहाँ से फिर वजूहात क्या देखी आपको? मैंने वजूहात ये देखी कि यहाँ पे ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब अपने बहन भाइयों के रवैये की वजह से हुई थी, और कुछ नहीं। इनके बहन भाइयों, इनकी बहन की डेथ हो गई, भाई ने कभी पूछा नहीं। और अपना तो इनके काफ़ी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है कराची के अंदर, किसी ने नहीं पूछा। दूसरा लोगों की नज़रें इनके घर पे थी कि ये इनको मार पीट के निकाल दे, ये खाली कर दे, हम इस पे कब्ज़ा कर लें। इस चीज़ पे काफ़ी दफ़ा थाने में भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई कि ये पागल है। अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि इनके कुछ ड्यूज़ हैं जो इनकी जो खुद ये गवर्नमेंट डॉक्टर थी, ये किसी मलीर हॉस्पिटल में वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस करती थी। वहाँ पे इनको अचानक वहाँ से बंद कर दिया कि अब ये यहाँ पे ना आए। फिर इनकी उन्हीं दिनों इनकी बहन की डेथ हो गई गर्मी की वजह से। अच्छा, इनकी बहन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में थी। उनके भी ड्यू इनको नहीं मिले, इनके अपने ड्यू नहीं मिले। इनके साथ एक वकील थे, उन्होंने काफ़ी गलत किया, इनका जो फ्लैट वगैरह था वो बेच दिया। इनको जितनी पेमेंट थी ये बिल्कुल एक कंकाल होके बैठ गई। इस टाइम इनके हाथ में कुछ नहीं था। हो रहा है, जब बंदे के आगे पीछे कोई ना हो तो फिर उसको लूटने वाले तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो फिर उसमें ये हुआ कि इनका ज़हनी तौर पे ये डिस्टर्ब हो गई। ये अपनी उसी दुनिया में जी रही थी कि मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा मकान है। वकील ज़मीर अहमद सिद्दीकी, जो इन्होंने नाम भी लिया और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इनको याद है, और इन्होंने जो नंबर दिया वो बिल्कुल सही है। उस पर हमने कॉल भी की, लेकिन जब हमने 1-2 दफ़ा कॉल की तो उन्होंने फिर रिस्पॉन्स दी, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। फिर सारन सर इनको यहाँ से शिफ्ट करवा के लेके गए, हमने इन्हें हॉस्पिटल में रखा, और आज आप इनकी कंडीशन देख सकती हैं कि किस हाल में पहुँच गई है। डॉक्टर साहब, आप जब दोबारा यहाँ से गई, एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के बच्चों ने इनको बहुत डिस्टर्ब किया, इन बड़ों के कहनों पे। इनके घुटने में मारा हुआ था और इनके पाँव इतने सूजे हुए थे, बहुत बुरी तरह। ये चल नहीं सकती थी, और पानी इनके घर का बंद है, इनके आस पड़ोस में इनको पीने के लिए पानी भी मुश्किल से देते थे। कोई दे तो दे, वरना ये 2-2 दिन प्यासी भी रही है। इस बेहिसी है इसको, ये बेहिसी हमारे जिस वक्त हम आए थे एक घूंट पानी नहीं था। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सब कुछ हम बिस्किट वगैरह खाएंगे। सर के साथ यहाँ पे विजिट किया, यहाँ पे पानी नहीं था। इनकी कंडीशन ऐसी बुरी हो रही थी ना कि जैसे पानी फर्स्ट टाइम इन्हें मैंने ला के दिया, ठंडा पानी पिया तो इन्होंने बहुत दुआएं दी और शुक्र अदा किया कि मैंने काफ़ी साल बाद ठंडा पानी पिया। जब इनको ठंडा पानी फर्स्ट टाइम दिया मैंने। बिजली का मसला है ना? हाँ, बिजली का मसला। बिजली नहीं थी यहाँ, बिजली नहीं थी तो पानी कैसे? पानी ये पानी मैं आते हुए लेके आई अभी, वो ये आपके शेल्टर वाली जगह से, वो कूलर रखा हुआ है ना कोने में, हाथ खुद चल गए। ठंडा ये आप लोगों ने पिलाया। 7 साल से इन्हें मुझसे ये कहा कि आंखों में चीपड़ आ रहे हैं। 7 साल से ना गैस ना बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं। सुजुकी होती है ना जी, क्या थी वो, हाई रूफ थी ना सुजुकी, जिसमें हम आए थे, शेल्टर वाली गाड़ी। उसमें ज़रा सा पानी आंखों पे डालो और आंखें साफ़ करो। मैंने आंखें साफ़ की, और इन्हीं की फरमाइश पे मैंने रेड कलर के कपड़े पहने हुई थी मैं। ये कपड़े चेंज करो, फिर हम लेके चलेंगे आपसे। ये हमने वहाँ पे तस्वीर बहुत प्यारा जोड़ा पहना आपने ऑफिस में, और कलर आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए चेंज करा। चलो सही, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। वो है भी गरम ना, गरम जोड़ा था। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी जो यकीनन चाचा चाची भी होंगे, फूफियाँ भी होंगी, रिश्तेदार होंगे, आप कभी उनसे मिलती थी या उन लोगों ने मिलने की कोशिश की आपसे? नहीं की। हम ईद बकरीद पे ही आते हैं। हाँ, ईद बकरीद पे आते थे। ईद बकरीद पे ही आते हैं रिश्तेदारों से मिलने। नहीं आए, वो भी नहीं आए। मैं ही जाती थी। तो फिर उनका तब जब आप जाती मैं थी इस तो तरह जाती थी कि देखें उनको जानिमाज़, तस्बीहां, कुरान शरीफ, साथ में मिठाई, फ्रूट, खाने वाने,
सही है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इनके कि रिलेटिव की बात सवाब कर की रही खातिर हैं। जब इनके आप ये खिलाफ खाओ, थाने में ईद का एप्लीकेशन मौका दी है। गई है, तो और थाने बस वालों ने वहाँ इनके वो लोग रिलेटिव मुझे से चाय मुलाकात बिस्किट किया। वगैरह छोटा सा ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू जारी है, हम डॉक्टर साहबा से मज़ीद जानेंगे। डॉक्टर साहबा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे मज़ीद बातें जानेंगे। मैं हूँ प्रोफेसर मिस नसीम बेगम, मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम है डॉक्टर, समझा करो, समझा करे भाई। आई एम ए फ्लैट ओनर सिंस देन 30 years. नहीं, जब ये बिल्डिंग बनी थी जब से फ्लैट मेरे नाम है। सही है या नहीं कि मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, और जब सर्विस मिली स्कूल हेल्थ में तो वहाँ सर नहीं खपाना पड़ा। जैसे आपका बच्चा किसी स्कूल में हो है तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई अम्मी अब्बू को बोलूँगा कि जब भाई डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो दिला दो, तो वो अम्मी बोलेगी स्कूल की डॉक्टर ने खुद क्यों नहीं दी। ये है पब्लिक मीडिया, बाहर खड़ा हुआ सुन रहा है। ठीक है भाई, दवाई नहीं बढ़ रही है ना राजवानी साहब, और मुख्तलिफ जगहों पे किराए की जगहें थी ना वो तो। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। आप अभी मिले कुछ देर पहले जो अपनी पैकेज देखा, वो थी डॉक्टर नीलोफर। किस हालत में थी, किस तरह थी, और आज मेरे साथ डॉक्टर नीलोफर बैठी। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि आज भी हमारी इंसानियत है, आज भी हमारे यहाँ सारिम भाई जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने अच्छे लोगों को खोने से बच जाते हैं। डॉक्टर साहबा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके ख़ानदान वाले तो होंगे, फूफी चचा यकीनन, है ना, उन लोगों से कभी मुलाकात होती है? आप कहते हैं ना जाती थी तो आप खाना पीना लेके जाती थी, क्या उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मिलना आपसे छोड़ दिया था? उन्होंने हाँ मिलना छोड़ा, इस तरह के शादी ब्याह जब होते हैं उनके यहाँ तो खाली कार्ड वो भिजवा देते हैं, कार्ड भिजवा देते कि फलां की शादी अटेंड कर लो फलां की। तो जाहिर है मैं अपनी बाजी के साथ जाया करती थी, और बाजी के बाद है ना मैंने जाना कैंसिल कर दिया। सही। अकेले मुश्किल होता है क्योंकि अपने क्लिनिक्स वगैरह जाना होता था। सही। और अपने किसी काम से जाना होता था। बाजी के जो छोड़े हुए काम हैं वो उनके जैसे प्रोफेसर्स वगैरह हैं और कॉलेज की, तो उनके कोई जाना होता है ईद बकरा ईद पे, तो मैं खुद उनको गिफ्ट दिया करती थी। हाँ, आपने बताया कि आप तोहफे लेके जाती थी, खाने लेके जाती थी, मिठाई लेके जाती थी। आपने विज़िट कराया, मैंने एक दुकान देखी थी शहर में जिसका नाम था गिफ्टोमेनिया। क्या कौन सी दुकान थी? एक दुकान थी खारादर नहीं, ब्रीटो रोड से आते हुए, उस पर लिखा होता है गिफ्टोमेनिया। मेनिया कहते हैं पागलपन को, पागलपन। लेकिन ये पागलपन नहीं है, वो मुझे दुकान का नाम नहीं अच्छा लगा। अच्छा, गिफ्ट सेंटर लिख देते उसको। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को देखें ये भी तो देखें ना, इसलिए कि मैं दिमाग की न्यूरो सर्जन न्यूरोफिजिशियन हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ये मेनिया क्या भाई, पागलपन क्या। तुम लोग दुकान के ऊपर क्यों लिखते हो? तो उससे है ना फिर लोगों ने गिफ्ट देने छोड़ दिए कि हम गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट देने को बड़ी बात, गिफ्ट देने को पागलपन कह रहे हो, किसी से मोहब्बत करो तो उसको पागलपन कहते हो। डॉक्टर साहब, आपने कभी किसी से मोहब्बत की? किसी से मोहब्बत की कभी? मोहब्बत इनसे की, बाजी के मिलने वालों से की, अपनी बहन के, अपने काम से की, अपने काम से की, अपने रिश्तेदारों से भी की। नफरत किसी से भी नहीं की। नफरत तो देखे ना, कोई चीज़ यूँ उठा के फेंक तो देखा जाए तो आपने भी तो मोहब्बत पागलपन की हद तक ही की। काम के पीछे आप इतनी पागल थी, इतनी मोहब्बत में दीवानी थी, क्या आपको अपनी ज़िंदगी नहीं दिखाई थी? नाम तो उसने सही रखा था, काम भी और बहन के पीछे भी है ना, मोहब्बत होते ही पागलपन का नाम, बहन के पीछे भी ना। अगर किसी को कोई चीज़ दें तो संभाल के रखो उसको, क्योंकि सैलरी जो मिलती है वो लिमिटेड मिलती है। सही। जो सैलरी दे देते हैं वो वापस नहीं देते, उसी सैलरी से ख़रीदा सब कुछ। अच्छा, अब अगर मुझे बताया आपके रिश्तेदार कोई आके आपसे मिलना चाहते हैं या भाई आपका वापस आता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उनसे मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, किसी को धक्के देके नहीं निकालेंगे, नहीं निकालना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं आपको कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो आपके पास नहीं थी?
میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ہے نا یہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں. وہ جو یہ ہم ٹی وی پروگرام وغیرہ بنوا رہے ہیں نا, یہ تو ہیلپ ہے نا, اور ہیلپ زیادہ اچھی چیز ہے. وہ لوگ صرف شادیوں کی تقریبات کا مووی بنواتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ نہیں, آپ انہوں نے کے اسی کا بھائی, جواب دیا ہے, آپ سمجھی نہیں ان کے جواب کو. میں بالکل ان کا جواب سمجھیے. آپ کے بھائی یہاں آتے ہیں, آپ انہیں ویلکم کریں گی. ناظرین, یہ وہ عورت ہے جو اس گھر میں اکیلی رہتی تھی. نہ لائٹ تھی, نہ گیس تھی, نہ بجلی تھی, پانی, نہ کھانے کے لیے کچھ تھا, نہ پینے کے لیے کچھ تھا. رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے کوئی سہارا نہیں تھا. بھائی جو بہنوں کا کی آس ہوتی ہے, ڈھال ہوتی ہے, اس کے ہوتے ہوئے وہ ڈھال دی تھی. آج بھی وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب آئے گا, کہ کوئی بھی آئے گا, میں اسے ویلکم کروں گی. انسانیت اسے کہتے ہیں. کیا آپ میں وہ انسانیت باقی ہے؟ ایک دفعہ مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ ضرور دیکھ رہے ہوں گے. آپ ڈاکٹر صاحبہ کے رشتہ دار بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, ان کے شاید ہو سکتا ہے بھائی بھی ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوں. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت جاگے تو ضرور آ کے اپنے بہن سے ملے گا, کیونکہ بھائیوں کی ایک ڈھال ہوتی ہے, اور بہن بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. میں خود 3 بھائیوں کی بہن ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بس وہ ہے نا, کافی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی شکایت, کوئی شکوہ ہے کسی سے کبھی؟ کوئی شکوہ؟ چلے مجھ سے ہی ہاں, کر دیں. شکوہ ہے. شکوہ ہے کس شکوہ سے؟ ہے کہ جب باجی کو ایسا ہو گیا تھا وہاں ہاسپٹل میں, تو ایک ہے ٹیلیفونک میڈیا. تھوڑا تیز بولیے. ٹیلیفونک میڈیا, ٹیلیفونک میڈیا, ہاں. ہاں, تو جس کو کہتے ہیں وہ دفتر ہے جنرل مینیجر کا, اور اس روڈ پہ آتے ہوئے پاکستان پوسٹ, صحیح, پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف دفتر. وہاں جب میرا بھتیجا ہے, اس کا نام ہے شکیل آزاد. صحیح. اس کو میں نے پہلے تو بھائی کو ہی کہا کہ ایسے ہو گیا, اب آخری رسومات ادا کرنی ہے. تو اس نے کہا بھتیجے نے, تو باپ نے شاید کہا ہوگا بیٹے کو, اور باپ یہ سب کچھ جانتا تھا پہلے سے, کہ اگر جیسے آپ ہاسپٹل لے گئی تھی ان کو, ایسے ہی آخری رسومات خود ادا کرو. اور بھتیجے نے کہا کہ ناٹ ٹو بی وری, اور اس کو اس کی یہ وہ وری ہے کہ آپ کہہ رہی ہو شکوہ شکایت کرو. تو دیکھو میں ابھی اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہوں, زیادہ نہیں غصہ کرنا, کہ اس کو وری لندن بھیجنے کے لیے بہن 2 بہنیں, ایک بڑی بہن ایک چھوٹی بہن, اس کو ڈپینڈ اپون پہ, یعنی اس کا رزلٹ روک لیا تھا انٹر کا, اس کو رزلٹ ملے, اس کو سرٹیفکیٹ ملے انٹر کا, وہ باہر جائے. وہ خود وہاں پر بختیاری یوتھ سینٹر ہے, وہاں جا کے اس کو اس کا سرٹیفکیٹ دلوایا تاکہ باہر جائے گا تو جاب کرے. آپ لوگ نے سپورٹ کی تھی اپنے بھائی کو؟ ہاں, بھتیجے کو. بھائی میرے ادھر کام کرتے ہیں لندن میں. آپ کے بھائی نہیں آئے اپنی بہن کے آخری نہیں, رسومات اس نے کے لیے؟ یہ کہا آخری رسومات میں کوئی نہیں آیا, یہ سب بلڈنگ والے گواہ ہیں کہ میں نے کی. کوئی رشتہ دار یہاں کراچی میں؟ خالہ آئی تھی. ایک خالہ آئی. ایک خالہ آئی تھی, خالہ کی بڑی بیٹیاں. مہربانی خالہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ اس وقت آئیں. ہاں, اس وقت آئیں, اور وہاں کو جب جتنے عرصے 11 دن, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی بہن نہیں کھوئی تھی, اپنی ماں کو کھویا تھا. اور ماں کو کھونے کا جو درد, جو غم ہوتا ہے نا, وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی ماں کھوئی ہوتی ہے. 20 سال ان کی بہن نے انہیں بچوں کی طرح پالا تھا, ساتھ رہی تھیں ان کے سامنے پل کے بڑی ہوئی تھی, اپنے ہاتھوں میں ان کا دم نکلتے ہوئے دیکھا تھا. اور پھر جب سگا بھائی یہ کہتے ہیں کہ آخری رسومات بھی خود ادا کر دیں, تو بے حسیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پہ دل کرتا ہے یہی کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ جو بول رہی ہو نا کہ شادی کیوں نہیں کی, شادی کیوں نہیں کی, تو شادی ہم نے کی بھائی کی خود. ہم بھائی دونوں کی شادی بہنوں خود کی تھی. ہم دونوں بہنوں نے بھائی کی شادی خود کی. اور بھائی نے یہ کہا کہ ہم وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ, کام کرتے ہیں, تو جب شادی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے انڈیپینڈنسی چاہیے, گھر اپنا علیحدہ چاہیے, تو آپ پاکستانی لڑکی بھیجو. پاکستانی لڑکی بھیجو. پاکستانی لڑکی ایک ہماری امی کی ممانی تھی, ان کی رشتہ دار تھی, یہ جو ہماری بھابھی, صحیح, سگی بھابھی, اس کا نام ہے قمر جہاں. قمر جہاں. قمر جہاں. بھائی کا نام ہے اعجاز الدین آزاد. اعجاز الدین.
تو انہوں نے کہا برادری کی ہے, چلو ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بہن تھی تو اس سے انہوں نے کی. چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور بھائیوں کی بھی ہو چکی. پھر اس کے بعد ان بھابھی نے بھی آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی, آپ جب کہ رشتے دار تھی, جان پہچان تھی. وہ آئی اس جگہ بیٹھی تھی یہ والے صوفے پہ میری بھابھی, آخری رسومات کے لیے سپارے وغیرہ پڑے جا رہے تھے. وہ آئی تھی لنڈن سے. ہاں وہ سپارہ وغیرہ پڑھ رہی تھی. میرے کہنے سے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی. اچھا, سورہ بقرہ یاد ہے, بلڈنگ میں ڈسٹریبیوٹ کی تھی, جلد میں پیک. اور وہ خالہ ایک چھوٹی سی دیگ پکوا لیں گی, کوئی بریانی تھی یا حلیم تھی پتہ نہیں کیا, کہ وہ بعد میں یہاں دسترخوان بچھا کے ان لوگوں کو, ایک روایت ہے قرآن شریف کے ختم کے بعد کچھ انہیں کھلا دو, کڑوے کا کھانا کھلاتے تو وہ کھلا دیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اس کو طے کر کے رکھ لیتے ہیں جو صورتیں ہوتی ہیں, اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے. وہ میں دے چکی تھی آپ کی بلڈنگ میں, سمجھ لو کیا تھا, دینی مدرسہ, کہ واپس اس کو سنبھال کے رکھو. بتائیے, سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, یہ غم میں نہیں خوشی میں بھی کام آتی ہے. بیٹھ کے پڑھو, 2.5 سپاروں کی ہوتی ہے, اور 2.5 سپارے بڑا قرآن شریف لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے, بیٹھ بھی ہوتی ہے. چھوٹی چیز میں آپ اس میں اپنا ذہنی سکون رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہو, عام دنوں میں بالکل کسی بھی وقت. یہ تو قرآن تو, اور بلکہ ہم یہ لے کے اگر کہیں جانا ہوتا تھا سروس وغیرہ میں, بس چلے گا, اپنا ہم گھر سے قرآن شریف پڑھ کے نہیں نکلے, بس میں بھی پڑھ لو اور بیگ میں رکھ لو پڑھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ابھی بھائی آ جائے آپ کے پاس, پھر سگا بھائی جو آپ کی بہن کے آخری رسومات میں نہیں آیا اور اب آ کے آپ سے ملے, تب آپ کا کیا ریئیکشن؟ معاف کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے آپ اسے؟ چلے معاف کر دیں گے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ ایسا کہہ رہی ہے, بھائی کے ساتھ ایسا کہہ رہی ہے. سعدیہ بہن آپ بھی اپیل کریں اس کے بھائی سے, دیکھ تو رہے ہوں گے. میں تو مسلسل یہی دیکھ رہی ہوں کہ ایک بہن جس کے ساتھ اس قدر زیادتی ہوئی, آج وہ کہہ رہی کہ بھائی آ گیا ایک دفعہ تو میں اسے گلے لگا لوں گی, میں اسے معاف کر دوں گی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو دنیا میں جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ جیسے لوگوں کی ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ پلیز اپنی پریکٹس کو دوبارہ جاری کریں. آپ کے اندر یہ جو خوبصورت سوچ ہے اس کو یہاں بڑھائیں, لوگوں کو ٹیوشن پڑھائیں, بچوں کو بلائیں اپنے پاس, ان کے اندر اس سوچ کو ٹرانسفر کریں کہ ایک دوسرے کے دکھ کو, ایک دوسرے کی تکلیف کو, ہمیں معافی, ایک یہ ہمارا بہت مشکل سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر پاتے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں. یہ چیز پلیز اب آپ لوگوں میں آپ نے بانٹنی ہے, صدقے جاری ہے. صحیح. اب آپ ٹھیک ہو کر آئیے. آپ کو کیسا, مجھے بہت خوشی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے آج میں ایک بہترین نیورو سرجن سے مل رہی ہوں, کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے بننا نیورو سرجن. بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے, بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور ڈے بائی ڈے آپ کی میڈیسن بڑھ رہی ہوتی ہے. آوازیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی, سڑک پہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانا, اور اگر موبائل ٹیلی فون بار بار آپ کو تنگ کرے تو اس پہ نمبر دیکھ لو اور اس کو آف کر کے موبائل میں ہی نہیں, زیادہ موبائل پر بات نہیں کرو تاکہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو. اس نے گاڑی بہت اچھی چلائی. صحیح, بالکل صحیح. کہا لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے موبائل ٹیلی فون کا استعمال کرو, اور یہ بھی جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو اپنی سالگرہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, یہ بھی جانتے ہیں. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنے سے پہلے 3 آپ لوگوں سے درخواست تھی, 3 لوگوں سے, اور اس کے بعد اپنی عوام سے ایک درخواست تھی. پہلی کے الیکٹرک سے, یہاں لائٹ نہیں, پلیز یہاں لائٹ کنیکشن دوبارہ بحال کیا جائے. بلز جو بھی ہوں گے, جو ڈیوز ہوں گے وہ ہم پے کر دیں گے, لیکن یہاں کا کنیکشن دوبارہ سے بحال کیا جائے. واٹر بورڈ سے میری درخواست ہے کہ یہاں پانی کا کنیکشن کر چکا ہے,
پلیز پانی کا کنیکشن، تاکہ یہ ایک دفعہ سے پھر زندگی کی طرف آئیں. گیس نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ گیس کے بھی اگر کچھ لوگ کوئی ایک ورکر بھی میری آواز کو سن سکتا ہے، وہ اپنے بڑوں تک میری آواز کو پہنچا دیں، یا گیس کا کنیکشن کو بحال کیا جائے، تاکہ کیا یہ گھر دوبارہ سے ایک دفعہ زندگی کی طرف لے. اور پھر اپنی عوام سے سارے مرنی ٹرسٹ آپ کی ڈونیشن کی وجہ سے چلتے ہیں، ہم سب اس میں حصہ ڈالتے ہیں. آج یہ ٹھیک بیٹھی ہوئی، بہت سارے لوگ جب ٹھیک ہوتے ہیں، اب یقین مانیے یہ مت سوچیے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، یہ سوچیے کہ آپ کس وجہ سے کس کو یہ دے رہے ہیں. بس آپ ڈونیٹ کیجیے. آپ کی نیت کو جاننے والا آپ کا خدا ہے. اور پھر دیکھیے آپ اتنا سا اس کے ساتھ تجارت کریں گے، وہ جب تجارت اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے پھر تو منافع ہی منافع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اب خواہش کیا ہے؟ اب آپ ایک نئی زندگی، دوبارہ وہی اچھی زندگی واپس آ جائے، دوبارہ وہی اچھی زندگی واپس آ جائے، روٹین کی لائف ہو. روٹین لائف ہو. وہی آپ نے کہا ٹیوشن پڑھائیں، وہ ٹیوشن بھی تھی، وہ علاج بھی تھا. وہ ٹیوشن بھی تھا، وہ ٹیوشن بھی تھی، علاج بھی تھا، کہ بلڈنگ کے لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کے، مرد بھی، عورت بھی، بچہ ڈاکٹر بھی. صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑے گا جناب. فوری طور پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں.